Good morning to all my dear students. I really appreciate the efforts of your all respected deans, Dr. Abhinand, Dr. Amit Rai, Dr. Raj Mishra ji, Sushil sir, Anshul sir and all this. I really appreciate the students of BBA, BCA and BJMC that though they are having a high time, this is the exam time. The exams are going simultaneously, but as an activity that in this quarter, this is our last activity, that the business model, and they spend their time and they come out with their idea. Give a big hand of applause for all those students that in such a high time, my dear students, this is the sting. Secondly, I also appreciate all the BCom students and I hope that in today's event something come out. See now why the weightage is given in your curriculum regarding the business models, canvas and business startups. The Indian government philosophy, the present government philosophy is that generating the employment with the same time, they are also interested to encourage the entrepreneurship in India. So this is one of the reasons that nowadays startup become the buzzword. But I know that we don't want 100 or 500 participants, even 10 participants, and out of that, if any idea is out of box, the outcome of this event is successful. Okay, so thank you once again to the whole team, those who have organized. On behalf of AMT College of Management and on behalf of our respected director sir, I take this opportunity to welcome all my students who are participating in this particular important event, or also those students who are able to make their precious time over here in spite of their examinations and busy schedules. Our directors are rightly appreciated the efforts and the seriousness of our students that in spite of this high time of their examinations, they are here to participate in this event. Sir, the reason is our students are very professional. They understand the importance of academic activity as well as the professional activity. They have not confined themselves, they have not restricted themselves only to the classroom session. Rather, they are outside that. They understand that such type of professional activities are very important to be a part of industry, to be a part of corporate requirement. This is nothing but an initiative, a step towards that. This business model canvas which we are conducting today, approximately 10 to 12 teams are participating, which includes the students of BBA, BCA, BJMC as well as BCom. I also congratulate and appreciate the effort of BCom students who are present over here, that we have requested them yesterday that you give your nominations for business model canvas. They have given their name. Not only they have given their name, they are also present over here to participate as audience. So a huge round of applause for all our lovely students. Now, without wasting time, I request the organizers to proceed this event. But before that, I would also like to congratulate the efforts of the faculty members, the students who are involved in making this particular program a great success, which starts with Ramita Bansal ma'am, Preeti Srivastava ma'am, Anshul sir, Dr. Subham Singh, and all the Sushil sir and all those faculty members who have put in their serious effort to make this particular program a grand success. Thank you so much. Thank you, sir. I'm delighted to announce that almost 16 teams, including 12 internal and 4 external registrations from different colleges, Lloyd, Gargotia and Global College, the students have shown their courage and interest to present here today in the midst of their final examinations. I think we are proud faculties of you guys all. Thank you so much for your presence over here. Now the rules further states maximum of 3 participants are allowed in one team. One team will be given a presentation time for maximum of 10 minutes. You have to wrap up your presentation within 10 minutes.
English language would be a preferred one, but not mandatory. Today's competition is about convincing your ideas to the audience. So you can choose your own medium. The better you can convince the audience, the better your idea would earn. So we are going to start today's event. Before that, I would like to invite our judges for today's event, Mr. Anshul and Ms. Preeti Srivastava ma'am, who are expertise in their fields and very much valued for judging today's event. Thank you so much for your presence. Now we are starting the event with our first team. So I would like to request our first team, Krishna Arora and Manya Vashne. Please come on the dais better. All the very best for your presentation. Good morning everyone. My name is Krishna Arora and my teammate name is Manya Vashne. And आप सबको पता ही है कि आजकल तो गाड़ियाँ सारे यूज़ करते हैं. ऑफ कोर्स की बात है कि मतलब कार्स वगैरह सारे यूज़ कर रहे हैं, बट उनके पास टाइम नहीं है कार सर्विस कराने का. ठीक है, तो मतलब कार को सर्विस जैसे लाइक किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम है बट वो फैमिली को टाइम देना चाहता है, वो सर्विस नहीं करवाना चाहता. तो मेरी कंपनी है मैशर्स, ठीक है, जो ये कार सर्विस प्रोवाइड कर रही है. और यही नहीं कि मतलब कार सर्विस ही, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम अपनी कार सर्विस बुक करवा सकते हो. लाइक तुमने अब कोई कार सर्विस करानी है अपनी, ठीक है, तो लाइक तो हमें तुम इन्फॉर्म कर सकते हो. बट इसमें आता है कि भाई चलो कस्टमर्स को नीड तो हो रही है, बट इसमें डीलर्स की क्या नीड है. इसमें हम डीलर्स के लिए लेके आ रहे हैं स्पेशली. लाइक हम एक फंडामेंटल स्केच माना, ये हमारा फंडामेंटल स्केच है हमारे ट्रेलर का. हमारा जो ट्रक है, हमारा एक मॉडिफाइड ट्रक होगा जो कार सर्विस प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, लाइक हमारा ट्रक उनके प्लेस पे जाएगा, ठीक है, वहाँ वो कार सर्विस करेगा. ये हमारा ट्रेलर है और ये ट्रेलर यहाँ पे हम सारा मैकेनिक्स का कराएंगे. और ये जितना भी यहाँ हमारी कार सर्विस होगी ये गराज के अंदर. लाइक ये एक चलता फिरता गराज है, हमारी मैशर्स एक चलता फिरता गराज है जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करेगी. बट कुछ लूपहोल्स आते हैं कि कहते हैं कि कोई लोग कि भाई मेरे गांव में ट्रक नहीं आ सकता, तो हमारी बाइक्स वगैरह भी आएगी. मतलब हमारे बाइक्स में सारे मैकेनिक्स वगैरह जो है वो भी जाएंगे. ठीक है, लाइक इस कंपनी में अभी गो मैकेनिक ही है, ठीक है, जो फिलहाल हमारे कॉम्पिटिटिव में है. और ये हमारा प्लान एग्जीक्यूटिव में है और कुछ इन्वेस्टर्स में मिल गए हमें. ठीक है, और फिलहाल ये प्लान के लिए ना ये हमारी कॉस्ट कटिंग है. जितने भी लाइक जितनी भी कार सर्विस होती है वो नियरली 15 to 2000 के बीच में होती है. अगर तुम कभी कार सर्विस कराना चाहते हो तो वो जब तुम्हारे प्लेस में आएगा तो वहाँ वो तुमसे 2000 तो चार्ज करेगा. लेकिन मेरी मैशर्स क्या करती है कि वो चार्ज कम लेती है. और इसमें तुम सोच रहे हो डीलर्स को क्या फ़ायदा है. ठीक है, वो तो मतलब लाइक तो ऐसे तो गो मैकेनिक पे चले जाएंगे अगर मेरे पास आने से बढ़िया. तो पर डीलर्स को हम क्या फ़ायदा दिला रहे हैं कि इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट करवा रहे हैं. लाइक हम अपने सामान नहीं बेच रहे हैं, वो अपना ही सामान बेचेंगे. ठीक है, उनके ही बैटरीज होगी, उनके ही सब कुछ होगा. और जितनी भी वो कॉस्ट है हमारी, ये जो कॉस्ट है, लाइक मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे ने 2 से 3 बैटरी बेच रहा है पर डे. ठीक है, अपनी शॉप पे वो, बट मैशर्स के साथ जुड़ के 10 बैटरी बेच रहा है. जो बैटरी उसकी 4000 की बिक्री है वो मेरे पास वो 3500 की बेच रहा है. ठीक है, और वो बेचने के लिए उसकी मतलब प्राइस वैल्यू तो कम हो गई, 3500 हो गई, मतलब 500 कम हो गई. बट वो जो वैल्यू कम हुई है तो वो 10 की मतलब लाइक वो 35,000 कमा रहा है पर डे. और वो 4 बैटरी बेच के, ठीक है, और 4000 की बैटरी बेच के कितना ही कमा लेगा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नॉर्मली. ठीक है, अगर 4 एक बैटरी मान लो मिनिमम कॉस्ट है उसकी 4000 की एक बैटरी. ठीक है, और 4 बैटरी से वो बेचा है तो कितना हो जाएगा 16,000 में उसको ज़्यादा फायदा रहेगा पर डे में, या पर डे में वो 35,000 कमा रहे हैं वो फायदा रहेगा. तो हमारी कंपनी डीलर्स को भी फायदा दिलाएगी और कस्टमर्स को भी फायदा दिलाएगी. ये हमारी कंपनी मैशर्स. थैंक यू. These two students have got some business idea in their mind, but you understand at the same time that once you go to outside institute, okay, you have different levels of mindset. मतलब मैं BCA की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा स्कोप है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकूँ, एक बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो मुझे मतलब बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है जिससे मैं कोडिंग सीख रही हूँ उनसे मैं एक वेबसाइट डेवलप कर सकती हूँ.
वेब पेजेस डेवलप कर सकती हूँ। AI is the most important thing in the engineering, और AI की बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आज के इस टाइम पे रोबोट्स बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं AI के यूज़ से। Very good. Why we are doing this? Until or unless you won't understand the sincerity of this activity, neither you will pay the attention nor we will get the benefit. We are talking about innovation. That innovation doesn't belong to a particular stream. Even the those who are doing BCom, they can also go for the innovation. If you talk about Warren Buffett, that was simply a BCom guy, and we won't believe he was one of the richest person of the world under 10. So it doesn't matter whether you are doing BTech or you are doing BCA or you are doing BBA or you are doing BCom. The innovation doesn't belong to a particular stream. It belongs to how you can think differently. How can you apply your thinking differently? If I talk about the Facebook concept, the Facebook concept was developed by the Massachusetts Institute of Technology, MIT, by the senior students to come to know what the batchmates are doing in our everyday life. That was only a simple project, and someday a students came in to know that why you can't make it our business model. We have developed a local area network platform where the students, those who are studying in final year in a particular batch, they are sharing their photographs, they are sharing their day-to-day activities, and the peoples are get to know what they are doing in their daily life. Then why we can't make it our business model? And today Facebook is one of the biggest company of the world. And now every day we are working for the Facebook, and we are using the Facebook. And the Facebook is spread throughout the world. So that Mark Zuckerberg done the things differently. So if you are sitting here, listen each and every concept very precisely. It might benefit you in your future. Thank you. We have another participant from Lloyd College. Peter, can you introduce yourself? Yourself and your course. Hello, good morning everyone. My name is Nitish Singh. I am from the Lloyd Business School and I am doing BBA and I am in 4th semester. The new generation business start e-commerce like E-commerce. in the 21st century we are doing online shopping. I'm also discussing about the e-commerce and what about e-commerce business, starting e-commerce business. So, thank you so much, Peter, for your presence. Thank you, ma'am. And my app, which I'll be going to give my idea regarding the app, is regarding like the daily problems which each and everyone face. Like basically this problem is something which I can put each and everyone present, including me and you and sirs, and everybody has faced some or the other day in their life. This is something related to fashion. I'll just tell you that what happened in day-to-day era, the problem. So what happened that first impression is our last impression. So basically what happened is that there are very deep thoughts in our mind. There are some things regarding this, like first impression is last impression, which let our mind go into deep thoughts. So basically what happens that whenever there is a occasion, party or something like that, a formal meeting or a party, what happens that one individual has to think a lot that what he has to wear or what she has to wear. It takes a lot of time for him or her to decide.
So basically what happens regarding this is that whenever they have to decide regarding the dress, they just miss some of the operational tasks, such as reaching the venue late, not reaching at time, just messing up with the wardrobe, or like if just talking about girls and ladies, so cosmetic changes due to change in the color and the texture of the dress. So basically what I want to say is that these are the basic problems which are faced by everyone, and I along with my team member are thinking to prepare a kind of app which will help you regarding these problems. Now I will hand it over to Ujjwal, who will now continue regarding the innovation. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें डेली लाइफ में क्लोथिंग सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है, तो हमारा जो ऐप है वो इस चीज़ का एक सोल्यूशन है जो एआई के थ्रू हमें ये ड्रेस कॉम्बिनेशन बना के देता है ताकि हम इजीली और अपने आप को इफेक्टिवली रेडी कर सकें किसी भी ओकेजन के हिसाब से। और हमारे ऐप को यूज़ करने के थोड़े बेनिफिट्स ये हैं कि टाइम सेव होता है, मनी सेव होती है, एंड हम एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं अपने लुक को लेके। और हमने 4 स्ट्रेटेजी तैयार किया, डिस्क्लोजर, डाइवर्सिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। नाउ ताशु कैन कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन। Good morning all. So I will tell you about the diversification of our app. So in our daily life we have to manage everything concise and to be clear with these things. तो इसमें बताते हैं कि हमारा जो ऐप है वो डाइवर्सिफाइड करता है, मतलब हम फैशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो जो हमारा ऐप है वो उस चीज़ में हेल्प आउट करता है। आपको 6 डाइवर्सिफिकेशन देता है, लाइक ओकेजन, सीजन, टाइप, साइज एंड कॉम्बिनेशन। मतलब इन सब चीज़ों को आपकी बॉडी के ऊपर देखेगा कि आपकी बॉडी किस चीज़ पे फिट होती है और उसके हिसाब से आपको वो रिजल्ट्स देगा। तो इट विल हेल्प यू टू मैनेज द टाइम। जैसे कि वितांश ने बताया, हम इवेंट्स पे जाते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हम क्या पहने, व्हाट वी हैव टू वियर। फर्स्ट क्वेश्चन इट कम्स इन आवर माइंड, सो वी विल थिंक अबाउट दिस headache and think about this to know in the era of the fashion we think about this problem. Now I will hand over this to Ujjwal Vidash. So as Ujjwal told, the 4D strategy, which is diversification, discrimination, disclosure and development. So basically now I will get up on the discrimination. So if any kind of discrimination is in this app, no. We give you to choose for all. It is a unisex app which will help you to just get a combination for all the girls, boys, kids, men, women and everyone. It will give you an opportunity for each and every individual. There is no kind of discrimination. This will give you different type of combination which will help you to just see that yes, this kind of cloth fits us. It will also give you some of the basic options such as languages and many more things. So basically this will help you. You can also provide it with your skin color. Now basically I'm just apologizing if anyone get hurt regarding the skin color. I'm not discriminating regarding skin color, but I'm telling that according to texture of the skin, the app will provide different type of cloths and color combination which will help you out in choosing the one. So now I'll hand it over to Ujjwal and he'll help you regarding another. बात होती है डेवलपमेंट की। जैसा कि हम सबको पता है कि डेवलपमेंट आजकल बहुत हो रही है और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ज़्यादातर हो रही है। तो आजकल के टाइम में एआई सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो हम यूज़ करेंगे एआई का जो हमें एक 3D डमी मॉडल बना के देगा। जैसा स्नैपचैट में होता है अवतार, जस्ट वैसे हम उसके ऊपर अपने पर्सनलाइज रिकमेंडेड जो ग्रोथ होते हैं वो देख पाएंगे और हम हर डायमेंशन से उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे ताकि हम देख सकें कि हमारे ऊपर कैसा लगेगा वो बेसिकली आपका खुद का एक 3D एनिमेशन। And this is all about development. Now it's time to disclose it, and Tashu is coming for it. So disclosing with your problem and a PPT too, you got the solution to one of the major problem which we are facing in our daily life, and it manage our time very well. So we will help you out for this problem, and we will try our best to give more to add more things in this application. Thank you. So it will give you each and everything involving like many features. It will give you like body type, texture, skin color as I told, and many more things such as it will like these are basic things like languages, and there are many more things.
and like it will give you different combinations and many. So how can you earn profit? Like basically out of a street there are no one software engineer. We are trying to patent our idea. If it will success, if people will like, we will patent our idea in some n number of cost, and then we will hire a software engineer and we will just give that app. We'll sell our app. कोई भी एक्टर है, ठीक है, एक्टर है, उनके लिए एक पर्सनैलिटी डेवलपर होता है, तो आपकी क्या जरूरत है? For common people, like each and every one cannot hire a personality developer. Like they are stars, they are having a number of and crore number of amount of rupees in their pocket, so they can just hire 10 personality developers, but each and every individual cannot. So we'll make an equality, no discrimination. Please give a huge round of applause to the students of HIMT who are able to come over here. However, they will give their brief introduction and brief business idea, but that would be definitely encouraging for all of us. And always the external participation is very much encouraging, not only for them, but for also our students. This is basically business model canvas in which all the students of BCA, BBA, BJMC and BCom are coming up with their own business ideas. So I request you also to give a brief introduction and whatever startup idea or business idea you have in your mind, please share with them. Hello everyone, myself Gaurav Kumar Singh. I am from Jharkhand. Which course you are Any pursuing? idea? Any idea? Which stream you are pursuing? Good morning everyone. I am Pawan Sinha. I am from Jharkhand and I am currently in HIMT college and pursuing BCA. I am in second year to develop some good and better app to make our work easy and done easy. ChatGPT has already made your work easy. Yes. And you Ma'am, want, but other anything we you we want should more also such apps. Okay, so you also don't create want such to apps. work on your own. You want some other. And we do, but we in future. Okay, okay. Thank you, thank you. What's your name? My name is Vikram Yadav. I am from Jharkhand. Thank you so much. Thank you. Good morning to all of you present here. सबसे पहले I just want to thank Dean sir for always giving opportunities to me. और सबसे पहले सॉरी, पिछले कुछ दिन मैंने आपको काफ़ी परेशान किया है कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, बट आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि आपने बहुत सपोर्ट किया है और हमेशा से मुझे बहुत। चेतन के लिए जोर से ताली बजाओ because the presentation which he is going to give, we are proud to announce that his startup has been recognized as the student startup of IMT College of Management. The details of his startup has already been given to the committee of IMT group of colleges, wherein his startup has been recognized and got #1 position out of all 6 colleges. So it is a matter of pride for all of us. Congratulations, Chetan. I am sure that you are doing a wonderful job, and in time to come in future, not only your startup will create its own presence across the globe, not only across the nation, across the globe, because you are doing a fantastic job. You are enthusiastic person, and definitely in time to come you will become a great entrepreneur. Please go ahead with that. Congratulations. आज बहुत सारे लोगों को आरजू के बारे में पहले से पता है, मैंने बताया हुआ है। जितनी बार 1 साल हो गया मुझे इस कॉलेज में, जितनी बार मैंने कुछ बोला है, मुझे स्टेज मिला है, तो मैंने इसी के बारे में बोला है। तो आज मैं कुछ डिटेल में बताऊंगा जो मैंने पहले बहुत कम बोला है, क्योंकि वक्त नहीं मिलता था। तो बेसिक सबको पता है, तो मैं आगे का बताऊंगा। बेसिकली आरजू म्यूजिक कंपनी एक म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल कंपनी है जो कि न्यू टैलेंट को एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये एक म्यूजिक लेबल कंपनी है। एक्चुअली इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं अपने माता पिता की शादी के 22 साल बाद पैदा हुआ। काफ़ी दुआओं और मन्नतों के बाद मैं आया इस दुनिया में। तो मेरा एक बचपन से गोल था कि 22 साल तक की उम्र तक मेरे पास टाइम है, जब तक मुझे सक्सेसफुल होना है। तो अब अगली साल मैं 22 साल का हो जाऊंगा और उम्मीद है कि मैं जो मैं करना चाहता हूं मैं वो भी कर लूंगा। दिस इज अ म्यूजिक लेबल कंपनी। हम वेबसाइट, ऐप और क्या बोलते हैं यूट्यूब और दुनिया भर के जितने भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना.com, जियो सावन, विंक, हंगामा, Z5, नेटफ्लिक्स, जितने भी दुनिया में जहाँ पर भी म्यूजिक रिलीज होता है उन सब पर हम अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली जियो टीवी लॉन्च हुआ, उस पर भी अब हम आ गए हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम म्यूजिक को लेकर
नए टैलेंट्स को रिलीज करते हैं, नए टैलेंट्स को लॉन्च करते हैं। ये बेसिकली मुझसे ये आया कि मैंने काफ़ी सालों तक दूसरे लेवल्स के लिए काम किया और उसके बाद मुझे लगा कि जो मुझे करना है इसमें वो नहीं हो सकता अगर मैं दूसरों के लिए काम करता रहा तो, क्योंकि नए टैलेंट्स को यूज तो किया जाता है पैसे कमाने के लिए, पर उनको कुछ नहीं मिलता। उनको ना रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, ना ही उनको पैसा मिलता है, ना ही उनको फ्यूचर में और काम मिलता है, बस उनको उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में आती हैं जिनमें एक फिल्म में एक्टर्स आते हैं, उसके बाद उनकी कोई दूसरी फिल्म नहीं बनती, भले ही वो फिल्म सुपरहिट भी हो जाए उसके बाद भी उनकी कोई दूसरी फिल्म नहीं बनती। तो हमने ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ न्यू टैलेंट्स को इसमें लॉन्च किया है और अभी फिलहाल हम 90 आर्टिस्टिक पीपल का ग्रुप है, 90 आर्टिस्ट लोगों का ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एडिटर्स, मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर्स, साउंड इंजीनियर्स, राइटर्स, लिरिसिस्ट और साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज। और इंडिया में अभी फिलहाल हमारे 7 स्टूडियोज हैं अलग अलग, जिन पे जो हमारी वेबसाइट के थ्रू बुक हो जाते हैं। अगर आपको अपना कोई रिकॉर्डिंग सेक्शन बुक कराना है तो यू कैन बुक अस फ्रॉम देयर। हमारे बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल हैं, हम बहुत सारे अलग अलग बिजनेस मॉडल से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फर्स्ट वन इज दिस कि हम रिकॉर्डिंग्स कराते हैं और उसमें जैसे कि किसी थर्ड पर्सन ने कोई स्टूडियो खोला है तो हम उसके साथ टाई अप कर देते हैं कि तुम्हें कस्टमर्स हम दे रहे हैं और कुछ परसेंटेज पे हम कमीशन परसेंटेज पे हम उनके साथ काम करते हैं। और आरजू सिर्फ इसलिए अलग है, सबसे हजारों म्यूजिक लेबल कंपनीज हैं, बट ये सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि इसका पर्पस अलग है। हमें वो ढिकचिक वाले गाने नहीं बनाने, हमें वो बिना फालतू का क्या बोलते हैं बंदूकों को प्रमोट करने वाले और अश्लीलता को प्रमोट करने वाले हम ऐसे गीत नहीं बनाने। 90s में जैसे गाने आते थे उन्हीं को पवित्रता और संगीतता के साथ हम लोग लेकर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक इस दुनिया की सबसे पवित्र चीज है, इसलिए शायद हम आरती का इस्तेमाल करते हैं ईश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। तो ये बहुत ही पवित्र चीज है और इसको लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ कि अगर मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूँ तो वो बहुत पाक होगा। ये हमारे कुछ रिसेंट वर्क्स हैं। अगर आप में से किसी ने MTV हसल का सीजन 1 देखा है तो उसमें एक रैपर थी जिनका नाम था, एक ये बहुत बड़ा रैप शो था, तो उसमें एक रैपर थी एक्सी नाम की। अगर आपने में से किसी ने सुना है तो सुना है क्या किसी ने? तो उनके साथ अभी हमने रिसेंटली काम किया है। उन्होंने मेरा एक गाना गाया है जो कि फॉलोवर्स नाम की एक वेब सीरीज आई है द वायरल फीवर प्रोडक्शन से, तो उसमें इन्होंने हमारे साथ काम किया है। और ये कुछ हमारे फीडबैक्स हैं कि हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हमारे फीडबैक्स हैं जिसमें MTV इंडिया जो कि इंडिया में सबसे बड़ा म्यूजिक चैनल है, जो सबसे ज़्यादा बड़े म्यूजिक को प्रमोट करता है, उसने हमारी कंपनी को प्रमोट किया है। और मैं एक्चुअली एक लिरिसिस्ट हूँ, राइटर हूँ, तो उन्होंने एक गाने में ये लिखा था गुड सॉन्ग नाइसली रिटन। तो दिस वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि MTV ने हमें मेल करके बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया, हमें चांस दिया, हमें पहली बार हमारे गाने को टीवी पे दिखाया। तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एंड MTV ने बहुत सपोर्ट किया है। हेलो एवरीवन, जैसे कि अभी हम एक YouTube चैनल रन कर रहे हैं, तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि अब MSME YouTube चैनल्स को भी सर्विस में रजिस्टर कर लेता है। जैसे कि आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर एक YouTube चैनल या फिर एक वेब चैनल को भी रन कर सकते हो और वहाँ पे आप बता सकते हो कि हम इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को, जिससे आप एक स्मॉल बिजनेस में काउंट किए जाओगे और जिससे गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी। तो एक YouTube चैनल खोलना बहुत आसान है, चलाना बहुत आसान है, लेकिन कंटिन्यूटी करके इससे रेवेन्यू जनरेट करना बहुत आसान है। अभी हमने इसमें गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि हमें अपने YouTube चैनल को रन करने के लिए हमें फंड की जरूरत है, और जो उन्होंने अप्लाई भी किया है और ये प्रोसेस में है अंदर। लेकिन एक टिप देना चाहूँगा, जैसे कि एक YouTube चैनल हम लगातार चलाते रहते हैं तो कंटिन्यूटी रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन एक टाइम पे इंटरेस्ट लैग होने लगता है। सीधे लगता है कि कंटेंट डेली कौन लिखेगा, वीडियो डेली कौन एडिट करेगा, रिकॉर्ड कौन करेगा, रिकॉर्ड कैसे होगी। तो AI की बात होती है, 2023 में जी रहे हैं हम लोग। तो 2023 में अगर AI की बात करें तो स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर सबके लिए भी AI का यूज होता है। तो उसके लिए अगर मैं कुछ टिप्स दूं तो पहले तो हम ChatGPT को सब जानते हैं,
तो जो लोग नहीं जानते कि चैट जीपीटी एक हमें प्रॉपर 5 से 10 मिनट की स्क्रिप्ट लिख के दे देता है किसी भी टॉपिक पे। तो थ्रू द चैट जीपीटी हमने बहुत सारी स्क्रिप्ट इनसे लिखवाई है, उसका क्रॉस चेक भी करा है, जिनके डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट रहते हैं। तो चैट जीपीटी के थ्रू हम कुछ डेटा को कलेक्ट करके और नेक्स्ट पीपीटी नेक्स्ट वेबसाइट आती है पिक्ट्री, जो एआई के थ्रू हमारी उस स्क्रिप्ट पर विजुअल्स लगा के देती है जो विदाउट कॉपीराइटेड रहते हैं, जिसका कॉपीराइट सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा और ये विजुअल बिल्कुल वैलिड रहते हैं। यहाँ पे हम अपनी खुद की बनाई हुई स्क्रिप्ट, मतलब कि हम अपने पसंदीदा टॉपिक्स को एआई से लिखवाकर उसको एआई से वीडियो एडिट भी करवा सकते हैं। एआई से वीडियो एडिट होने के बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड पर जाए तो 11 लैब्स के थ्रू हम उसमें अपना खुद का वॉइस ओवर, लाइक जैसे कि जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको एक इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, मेल या फीमेल लैंग्वेज में उसको वॉइस ओवर भी करवा सकते हैं, जिससे कि एक नॉर्मल बंदा फ्रीलांस कर सकता है। लाइक जैसे कि स्क्रिप्टिंग खुद कर लो, उसको फिर एडिट भी खुद करवा लो और वॉइस ओवर भी खुद करवा के आप यूट्यूब पे लॉन्च कर दो, जिसके लिए गवर्नमेंट भी आपको अप्रिशिएट कर रही है, आपको एज अ बिजनेस रजिस्टर कर रही है, जिससे आप इन्फॉर्मेशन चैनल चला लो। और अगर बात करें वेब चैनल्स की, लाइक जैसे कि हम एक वेब चैनल चलाते हैं, तो वेब चैनल में सोशल मीडिया, यूट्यूब दोनों आता है। तो यूट्यूब के थ्रू जैसे कि एड्स, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, लाइक वी आर डूइंग। सो दैट इज इट। ताली बजा दो, ताली बजाने में क्या जा रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन नहीं? प्लीज सर। प्रेजेंट में आपका भी कोई चैनल है या फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम खुद का अपना चैनल रन कर रहे हैं। कौन सा चैनल है? जनतंत्र ऑनलाइन। एक्चुअली हम एमएसएमई रजिस्टर्ड है और हमारे पास खुद का सर्टिफिकेट है। वेरी गुड। Good morning, respected Dean sir, HOD sir, and respected faculties. My name is Ritesh Yadav, and here are my teammates Lavjeet Singh and Adit Singh. At the start of the event, Ramta ma'am said English is the preferred language, but as Asneer Grover, a good businessman, said that बिजनेस की भाषा, धंधे की भाषा हिंदी है, तो प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी। स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड। तो हमारे स्टार्टअप का नाम है पाई, जो कि है अ पाई फ्रॉम योर होम, जो कि 2 सर्विसेज को रन करेगी साइमल्टेनियसली वन टाइम, जो कि प्लेटफॉर्म होगा हमारा ऑनलाइन, साइट एंड ऐप। जो 2 पार्ट्स में हम लोग कैरी आउट करेंगे इस चीज़ को, वो है कि सबसे पहले तो एक हमारा फूड डिलीवरी सिस्टम होगा, जो कि होम फूड हम हमारे जो भी कुक्स होंगे वो बनाएंगे। उसके बाद डिलीवरी सिस्टम हम अलग से ऐड ऑन करेंगे, जो कि डिलीवरी आपको आपके होम तक करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड चीज़ रहेगी हमारी, वो रहेगी आपकी कि कुक आपके प्लेस पे जाएगा, आपको सर्विस देगा और आपके लिए फूड कुक करेगा, और वो सर्विस अलग रहेगी हमारे। उसके लिए फाइनेंशियल सिस्टम हमारा बेसिक अलग रहेगा उसका। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग बाहर रह रहे हैं या फिर जो भी लोग बाहर पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के अलावा जो भी वर्किंग पीपल हैं वो लोग भी इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं कि हमारे पास फूड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बाहर खा रहे होते हैं और वो हेल्दी डाइट नहीं होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये अच्छा सा सॉल्यूशन है कि हम होम फूड अवेलेबल करा सकते हैं आपके लिए। और ये जैसा कि मैंने बताया 2 पार्ट्स में कैरी ऑन होगा। तो नेक्स्ट चीज़ है कैसे वर्कआउट करेगा एग्जैक्टली, वो आपको आदित्य आके बताएंगे। So good morning everyone, my respected teachers and my dear friends. So हमारा जो, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा टॉपिक है पाइपलाइन, जो हमारा बिजनेस मॉडल है। बेसिकली रितेश ने आपको बताया कि इसके अंदर 2 टाइप्स की सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। फर्स्ट इज कि हमारा जो कुक है वो आपके घर पर जा रहा है, एंड सेकंड कि हम डायरेक्ट आपको फूड डिलीवरी करा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी नीड पहचाननी होगी कि हम लोगों को इसकी नीड क्यों है। नीड ये है कि आज के टाइम में जस्ट लाइक हमारे बीच में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग जगह पर जॉब करने जाना प्रेफर करेंगे इन द फ्यूचर। उन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो अपने
घर जैसा खाने को मिस करते हैं सबसे ज्यादा। तो वो प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करी एक तरह से। हमारा जो यहाँ पर मेन फोकस रहेगा वो इस चीज के ऊपर है कि जो हमारा कुक है वो घर पर जाए। अभी वर्क कैसे करने वाला है, इसके लिए काफी सारी चीजें हैं। लाइक आप लोगों को खाने का मन कर रहा है, आई थिंक सभी का फेवरेट होगा शाही पनीर, बटर चिकन, एवरीथिंग, हर किसी को ये फेवरेट होता है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर कि हम लोगों को वहाँ की क्वालिटी के ऊपर हम लोगों को डाउट रहता है कि जो चीज हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है। वहाँ पर जो चीज आप लोगों को खाना पसंद है उसमें लाइक आपको स्पाइसी खाना है, आप लोग वहाँ पर अपनी हर चीज को एक तरीके से मॉडिफाई नहीं करवा सकते। मतलब आप लोग अपने स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन नहीं करवा सकते हैं। बट जब कुक आपके घर पर आ रहा है, जब आप लोगों के बीच में वो कुक आकर बना रहे हैं, तो आप लोगों को किस क्वालिटी के स्पाइसेस यूज करने हैं, क्या चीज खानी है, हर चीज आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली अपने घर पर बनवा सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड इज कि कुक वहाँ आपके घर पर डिलीवर करेगा। इस कंडीशन में क्या है कि आप लोग कितने पर्सन्स हैं, ओके, ये मैटर करेगा। उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो आपका कुक है वो उस अकॉर्डिंग खाना बनाएगा। बट यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक बेसिक फाइनेंशियल टेबल है जो हमारे वर्क कर रहे हैं दो पार्ट्स में। एक कुक एट होम जो हमारी सर्विस है, और सेकंड सर्विस जो हमारी फूड डिलीवरी करती है। तो ये फिगर्स जो हैं ये एस्टिमेटेड है, पूरी तरीके से जमसन पे भेज दें, पे ये कोई एक्यूरेट टेबल नहीं है। तो फर्स्ट वाली टेबल पे रो पे हम देख सकते हैं कि जब हमारा सर्विस रन करेगी कुक एट होम, तो उसमें अगर हमारा टोटल अमाउंट 100 रुपीज़ कैसे होगा, तो इन केस जब हमारा कुक सर्विस होगी 76 रुपीज़, तो हम वहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म चार्ज करेंगे 4 रुपीज़ का। और ट्रैवल चार्ज जो होगा हमारा कुक एट होम पे, जो कुक हमारा ट्रैवल करके आपके प्लेस पे जाएगा, तो उसका हमारा एक्स्ट्रा चार्ज 20 रुपीज़ का होगा। और इन टोटल वी विल हैव अ फिगर ऑफ 100 रुपीज़। और उसके बाद में हमारा जो फूड डिलीवरी का होगा सेकंड पार्ट, उसमें क्या होगा कि हमारा सर्विस चार्ज बढ़ जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा सर्विस भी ऐड करनी पड़ेगी कि आपके प्लेस पे हमारा कुक खुद जाएगा, तो वहाँ पे हमारे फिगर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कुक सर्विस थोड़े से रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि कुक यहाँ पे आपको फूड प्लेस पे जाके नहीं दे रहा है, बल्कि कुक यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ेगा कि डिलीवरी मैन हमारा जाएगा, वो एक्स्ट्रा हमें सर्विस ऐड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी कुक की सर्विस रिड्यूस है। और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन हमारा होगा 8 रुपीज़ का, और ट्रेवल चार्ज वही नॉर्मल से 20 रुपीज़ का। और ग्रोसरीज एक्स्ट्रा जो हमारी पड़ेंगी एट द प्लेस, जो कि खुद की जो होंगी, जो भी आपके प्लेस पे जाएगा तो आपको खुद की ग्रोसरीज यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो उसके कॉस्ट रहेगी 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा। So moving on to the next slide. Next concern is security for our cooks that will Lavjit will explain that. Good morning everyone. Security for our cooks. जब हमारा फर्स्ट केस होगा तो हम अपने वर्कर की लोकेशन ट्रैक करेंगे जब तक कि वो अपने कस्टमर के प्लेस से निकल नहीं जाता। और सेकंड, अगर हमारे वर्कर के साथ कुछ मिसबिहेवियर होता है तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे, जो कि हमारे टर्म और कंडीशन में पहले से ही मेंशन होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पर एक रेटिंग सिस्टम होगा जो हमारे बिजनेस का एक मेन पार्ट है। इसमें दोनों के लिए एक रेटिंग सिस्टम है, कुकिंग रेटिंग एंड कस्टमर रेटिंग। ये जरूरी इसलिए कि यहाँ पर हम लोग जैसा कि बताया कि एक सिक्योरिटी बहुत मेन पर्पस है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। कुक रेटिंग का यहाँ पर क्या फायदा होगा कि जस्ट लाइक आप लोग कोई भी कुक अपने प्लेस पर बुलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये चीज गौर करी जाएगी कि किस कुक का कितना अच्छा रिव्यू है, कितनी अच्छी तरीके से वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहा है। ओके, जो कि हर बिजनेस में देखा जाता है। बट यहाँ पर एक और चीज है कस्टमर रेटिंग। अगर आप लोग इस चीज पर गौर करोगे तो कंपनी बहुत कम गौर करती है कि भाई कस्टमर्स का उनकी तरफ कस्टमर्स का बिहेवियर कैसा है। ओके, क्योंकि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी केवल कुक या फिर कस्टमर की नहीं है, हर किसी के लिए मैंडेटरी होती है। सो कस्टमर्स रेटिंग यहाँ पर गौर की इस चीज कस्टमर रेटिंग पर गौर इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो हमारा कुक अगर उनके प्लेस पर जा रहा है या फिर कोई भी डिलीवर वहाँ पर उनके घर पे कोई भी फूड डिलीवर करने जा रहा है, तो डिलीवरी मैन के साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है कस्टमर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बता सकता है, कोई भी प्रोसीजर लीगल प्रोसीजर वो फॉलो कर सकता है।
बट इन द केस अगर वो कोई भी इलीगल हरकत करता है हमारे किसी भी वर्कर के साथ, देन उसकी रेटिंग्स यहाँ पर गिरा दी जाएंगी और एक ऐसा टर्नओवर आएगा उसकी कस्टमर की रेटिंग जाती है तो वहां पर हमारे जो कस्टमर है उसको बैन कर दी जाएगी। इससे ज्यादा हमारी सर्विसेज को आप नहीं ले सकते, बिकॉज अगर इससे ज्यादा वो खराब जा रही है उनकी रेटिंग्स तो पहले उनको उनको मैसेज किया जाएगा, कंपनी की तरफ से इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप अपनी रेटिंग्स को सुधारिए, कस्टमर्स के साथ में, वर्कर्स के साथ में आप अच्छा बिहेव करिए एंड आप हमारी कंपनी की जो सर्विसेज हैं उनको आप एंजॉय कर सकते हैं इजीली। एंड जैसे कि हमारी टीम है, अभिषेक इज नॉट प्रेजेंट देयर, आदित्य एंड मैं नितेश, हम लोग मेंटेनेंस एंड प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं। लवजीत जो को-फाउंडर है, ओके। एंड किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है हमारी सर्विसेज से लेकर हमारी कंपनी को लेकर तो प्लीज पूछ सकते हैं। यस सर। Have you identified possible risk and challenges? सर इसमें चैलेंजेस ये आएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो एक किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसको स्टार्टअप में बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना एंड उसको वर्क मिलना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले जो हमारा मेन टारगेट है कि कंपनी का जो मार्केटिंग हमारा सबसे मेन चैलेंज रहेगा स्टार्टिंग में। एंड इसके अलावा हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है कि कस्टमर्स का जो नीड है उसको हम फुलफिल कर पाए, क्योंकि हर कंपनी इस चीज के लिए ना परफेक्ट नहीं हो पाती है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उस लेवल तक जा पाए, क्योंकि परफेक्शन आज तक कोई मैच नहीं कर पाया है सर, जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो हम उस चीज को बेटर एंड इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। आपका क्वेश्चन था? So how could you differentiate this with a maid? Like if I just hire a maid, male or a female, which will come to my home, he or she will cook the food, she will even just wash the dishes in which I'm eating the food. So how would you differentiate? फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एंड जो हमारा कुक है इसमें दो डिफरेंस होने वाले हैं। जो मेड होती है वो घर का प्रॉपर ऑल द वर्क संभालती है, बट हमारा जो मेन फोकस है वो खाने की तरफ है, ना कि पूरी घर की सर्विसेज की तरफ है। और जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विसेज हमारा फोकस है कि घर जैसा खाना हम आपको प्रोवाइड कर सके, ना कि घर की सर्विसेज दे सके। Good morning everyone, myself Harshit Chauhan and Good morning everyone, myself Preeti and I am here to discuss about business model idea on the topic of green marketing. So firstly I could tell you what is green marketing. Green marketing is a marketing which is we produce eco-friendly goods and not giving any harm to nature. Introduction to green marketing as a business idea model. Green marketing is a strategic approach that focuses on promoting environmental friendly products and practices. It involves incorporating sustainability values into all aspects of marketing, from product development to communication strategies. Green marketing is gaining popularity due to increased consumer awareness and demand for eco-friendly products. I would like to proceed, Harshit. आप सब जानते हैं कि ग्रीन मार्केटिंग से हमें क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम इतने सारे अनडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट सबसे गंदा हो जा रहा है। तो इसी हमारा टॉपिक इसी बेस पे है कि हम कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो ग्रीन मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिससे कोई इन्वायरमेंटल हार्म ना हो और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बने, जिससे सोसाइटी को भी अच्छा लगे कि उनका प्रोडक्ट साफ सुथरा है, कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे सोसाइटी को हार्म होता है, जिससे और चीज़ें भी होती हैं। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिससे सोसाइटी को भी हार्म ना हो, क्योंकि सोशल वेलबींग हम सबको पता है कि ग्रीन मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे आज के टाइम में। इसलिए उनकी ब्रांड इमेज बढ़ाने के लिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसको ग्रीन मार्केटिंग अच्छे से कर सकें। इसके एलिमेंट्स हैं अंडरस्टैंडिंग द टारगेट वैल्यू। उसके टारगेट वैल्यू हमें पता चल जाते हैं। प्रेफरेंस एंड एटीट्यूड टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी इन क्रूशियल इफेक्टिव ग्रीन मार्केट। डेवलपिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और मॉडिफाई करते हैं उसका एग्जिस्टिंग और वंस टू मीट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड इज एसेंशियल। और इसके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं
आप सबको पता है कि सारे लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं। तो इसमें कुछ कंज्यूमर ऐसे भी होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट गिराने के लिए हमें ग्रीन वॉशिंग करते हैं। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स फैलाते हैं। तो इसके एग्जांपल है सक्सेसफुल ग्रीन मार्केटिंग के पैटागोनिया डोंट बाय दिस जैकेट कैंपेन प्रमोट द आइडिया ऑफ रिड्यूसिंग कंजम्पशन रिपेयर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू वंस। तो ग्रीन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं? कोलैबोरेशन विद लोकल सप्लायर्स एंड प्रोड्यूसर्स who share similar sustainable value can differentiate small business। और ग्रीन मार्केटिंग फ्यूचर बिजनेस क्या होती हैं? सब आपको पता ही है कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होती ग्रीन मार्केटिंग के लिए, और इसका कंक्लूजन प्रीति आपको बता देगी। Green marketing offers numerous benefits for businesses, including enhanced brand image, cost saving, and access to a growing market segments. Successful green marketing strategies require understanding the target market, developing eco-friendly product, and effective communication. The future of business will be shaped by the integration of sustainability into all aspects of marketing and operation. Good morning everyone. Present here, myself Vinti Bansal. In this present era, we all know automobile is much important in our lives. So here, we travel partners are going to help you in your car breakdowns and car services and car maintenance at the time of need and emergency. We are going to use this as a business opportunity. Travel Partner is a e-commerce platform which provides services through its online platform. Travel Partner is here to provide an online platform to connect the users with its mechanics at the emergency time, even also at 24/7, even also at night. Talking about our motive, we see ourselves to be independent and establish. We want to establish easily accessible services for everyone at any time, and we want to provide work to the mechanics, talented mechanics in the future who are not able to find. Our mission is to establish a unicorn platform and contribute to the economy of India. We want to provide the services quickly at the places where the services are not available, and we offer people to prevent uncertain accidents which may take place due to breakdown of vehicles. These are our services we will provide on our website. These services will be ensured 24/7 with safety and security, and so that any mishappening could not happen to our customers. And all the services will be fully provided by the garage and the mechanic. We would only work as a web portal to connect you with your customers. This is a step. These are the steps how a customer can register its complaint on our website and contact to its mechanic at the time of need. Some garages, local garages, will be registered on our website with some terms and conditions. They will ensure some terms and conditions to provide the safety and security. They will be registered on our website. The customers will be able to choose which mechanic they would like to avail services from, and they would always be provided with the basic services of the mechanics. Methods to fix the complaint. Once the customer registers he could the garage and the mechanic will be notified soon, and they will assist. The garage will assist its mechanic to solve the problems as soon as possible. The best benefit I think is the car
breakdown will always be repaired with safety. E-library is a digital platform provides the access of collective of book, magazine and search of materials. E-library is a very profitable business idea due to the increase the demand of the digital content. It is populated of online learning. E-library हमें कुछ E-library में हेल्प करता है, जैसे हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो अगर हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें अकेली प्राइवेसी चाहिए, तो हम E-library में जाके अपने पेपर की जो प्रिपरेशन होती है वो हम कर सकते हैं। और ये जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल भी है। कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं जो अपनी पूरी बुक को कलेक्ट नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, तो वो लाइब्रेरी में जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसकी जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसके बेनिफिट भी हैं, जैसे कि हमारी जो रीडिंग स्किल होती है उसे भी इम्प्रूव करता है, हमारी जो पर्सनालिटी है उसे भी डेवलप करने में जो है E-लाइब्रेरी हेल्प करता है, जिससे जो अगर हमें किसी की रीडिंग अच्छे से नहीं आती है तो हम अगर रीडिंग करते हैं, कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश रीडिंग करते हैं, तो हमारी इंग्लिश रीडिंग भी इम्प्रूव हो सकती है और हमें जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी E-लाइब्रेरी से मिलता है। और यहाँ से अगर हमें बुक इशू कराना है तो हम बुक इशू करा के कुछ टाइम के लिए पढ़ भी सकते हैं। और ये जो सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करता है, जैसे कि किसी को बुक लेनी है तो बुक वहाँ से लेता है इसके लिए, और ये हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। It is the best source to research information about your future and past, present. It is very important in your life. A very warm good morning to all of you, respected Dean sir, HOD ma'am, and all dear faculties. Today we are standing here to educate about our business model, sharing auto rickshaw. What is auto rickshaw? It is a three-wheeler vehicle. It is also known as tuk-tuk. It consists of 650 to 1400 watt battery to travel. प्राइस रेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस रेंज इसका 50,000 से 2 लाख के आसपास का मिल जाता है। और फिर कॉस्ट ऑफ बैटरी का कॉस्ट, जो चार्जिंग का कॉस्ट उसका अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड रहता है, 90 to 150 रहता है, बैटरी के साइज के हिसाब से रहता है उसमें। और फिर बैटरी की इंफॉर्मेशन, अलग अलग टाइप्स की बैटरीज रहती हैं इसमें, और जैसे बैटरी के अलग अलग टाइप्स रहते हैं उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग रहती है उसी के साथ। कॉस्ट 90 to 150 रुपीज़ बैटरी के फुल चार्ज होने के लिए। 220 से 280 किलोमीटर चल जाती है एक बार फुल चार्ज होने पे, वही बैटरी के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर बड़ी बैटरी लोगे तो ज़्यादा चलेगा। प्रॉफिट मार्जिन इसका 47% प्रॉफिट मार्जिन आता है पर डे का, और इतना 47% प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है एक बिजनेस के लिए। सबसे पहले अगर प्रॉफिट ही देखें, प्रॉफिट से सबसे पहले अगर ऑटोज व्हीकल्स कोई चलते हैं तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट, और अगर ऑटोज चलाएंगे तो हम खुद तो चलाएंगे नहीं, ड्राइवर रखेंगे, तो उसकी ड्राइवर की सैलरी करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो 47% था जो उसमें शो हो रहा था। अब इसमें प्रॉफिट हमें मिलेगा कैसे? इसमें यहाँ से परी चौक तक जाने के लिए कितने रुपए लगते हैं ऑटो के? 20 रुपीज़। और यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक में हम 10 रुपए भी लेंगे पर पर्सन, तो अगर प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी ऑटोज की, इलेक्ट्रिक ऑटोज की, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो पर राउंड हम 60 रुपीज़ कमाएंगे। अब 60 रुपीज़ कमाएंगे तो टोटल हमारे लगेंगे 73 राउंड्स लगेंगे यहाँ से परी चौक तक के टोटल में, तो 73 into 60 हमारा 4390 कुछ अप्रॉक्स आता है। अब उसमें से हम पर डे के हिसाब से अगर ड्राइवर की 500 रुपीज़ भी माइनस कर दें, मेंटेनेंस कॉस्ट भी माइनस कर दें उसमें 140 रुपीज़ के अप्रॉक्स लगा के, और बाकी जो उसमें फुल हो रहा था 90 रुपीज़ में जो बैटरी हमारी फुल हो रही थी उसको माइनस करके टोटल हमारा 3290 कुछ अप्रॉक्स आ रहा है, वो हमारा पर डे का प्रॉफिट आ रहा है उसमें। ये है मेन प्रॉफिट। और जबकि इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है इसमें, जो कि 50,000 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी हमारी। उसके बाद हमें इसमें प्रॉफिट है, पर डे का प्रॉफिट हमें 3000 अप्रॉक्स मिल रहा है इसमें। इस प्रॉफिट मार्जिन के साथ हम एक और चीज कर सकते हैं जिससे हमारा जो कॉस्ट होगा वो और रिड्यूस हो जाएगा। वो आता है सोलर इलेक्ट्रिक ऑटोज, तो उसमें जो बैटरी की जो फिलिंग कॉस्टिंग जो चार्ज रहती है ना वो भी कम हो जाएगी, डायरेक्ट सोलर से चलेगा वो। To expand their business online, because you all know that world become digital. So before starting my presentation, I want to ask only one question. Have you ever ordered anything online? Please raise your hand. Have you ever ordered anything
anything online? So okay, as I can see, many of you ordered online. So you must familiar with the word online and meaning of online. Okay, did you know that only 20 to 30% Indian people have their own website, and approximate 70% people do not have their website. Even they have a small shop. I have seen that small shops are no longer able to earn anymore because they don't have their website. So we are here with this solution. We will help them to build their website and make their success online. Let's come to our presentation. What is WebSketch? WebSketch is the process of planning, conceptualizing and implementing the plan for designing a website that performs its functionality and offers a good user experience. I think you all know that user satisfaction means customer satisfaction is the most important and central to the overall WebSketch development. Here, if you have a website for your business, there are so many benefits. It will improve your credibility and it will boost your sales. It will also help you to boosting your brand value, and last, it will give you a best opportunity to improve your business. And our process, our services, and why do we need website for our business? She will tell you everything. Good afternoon everyone. My name is Rupali. I am a BCA first year student, and now I am to tell you about why we need a website and our services to provide to you and our process. Now I will tell you what is website. Website is a connected place with internet where companies and organizations put information on World Wide Web. Website act as a platform to educate people about business, our product and services. Website help us to increase our credibility, sales, cost, return and profitability. Website help us to very much to increase our product visibility, lead time and many more. Our services provide to you. First, web design. Creating visual, appealing and friendly website. Web development, building robust, scalable, interactive web solution. E-commerce, developing online stores with secure payment gateway. And our process. Our process in 5 steps. First step is discovery phase. And second is design and planning. Third one is development, fourth testing, and fifth launch and maintenance. First, our discovery phase. Discovery phase is also known as information gathering. The first step is focus on gather information from our clients for the project and carefully analyze the client's requirement, their goals, and what is the purpose of website. And third one is our target audience. What is target audience means? What is the interested people to reach our website first. Firstly, जो हमारी ऑडियंस हमारी वेबसाइट को रीच करेगी वो, अब उनके बारे में हमें उनकी एज, उनकी हैबिट्स और उनके इंटरेस्ट क्या उसके बारे में हमें पता चलेगा तो हम एक बेटर वेबसाइट डिजाइन कर पाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप इज आवर design and planning. First one, we all gathered information from phase 1 to collect it and make a detailed website plan. जो भी हमने फर्स्ट स्टेप में इंफॉर्मेशन गैदर की है उसे हम एक उसका वेबसाइट प्लान बनाएंगे और एक हम साइट मैप बनाएंगे. साइट मैप मीन्स हम जो भी वेबसाइट के मेन एरिया होंगे, मेन एरिया मतलब क्या क्या हमें होम पेज में क्या करना है, कितने कंटेंट्स लिखने हैं, क्या विजुअलाइजेशन होगी, ये डिसाइड करेंगे. और डिज़ाइन प्रोसेस में हम जो है केयरफुली अप्लाई करेंगे विजुअल टूल्स लाइक लोगो, ब्रांड और जो हमारी और वो सब चीज़ें जो हमारी ब्रांड जो हमारी वैल्यू है वेबसाइट को बढ़ाएंगे. एंड इसी स्टेप में हम प्रोटोटाइप बनाएंगे. प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप जो है एक स्टैटिक इमेज होती है जो कि हमारी वेबसाइट को एक फाइनल लुक देता है. एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ स्टेप. At this point we design itself our website, but it usually in the form of image.
but we get extra effort to translate in HTML, CSS, or add more layer and add animation. We add JavaScript as depend on the complexity of our design. First, we develop home page followed by shells, and this involves writing of HTML and CSS code in appropriate way as we want to choose. And fourth step is testing. When our content and visual are decided, then testing can be started. Testing can be started as we check all the web pages and the links that we are connected in our website. Check all links that are working good or not. And sixth step is launch and maintenance. How to launch our website. When we get a final approval from our client, when our website यानी हम एक client को दिखाएंगे एक approval लेने के लिए, client उसे मतलब कह देंगे कि ये ठीक है, तो हम website को launch करेंगे. और उसके साथ साथ हम अपनी website को registered भी करवाएंगे with domain name, और हम maintenance service भी provide करवाएंगे. And next, benefits of our website explained by Ashmita. So let's see what benefits we will provide to our customers. First, we will give them a complete satisfaction and best result, and always free for any service. Last but not least, we will make their website in reasonable price. And I think two questions must be arise in your mind, that how much price, how much money will it cost, and second, how much staff do you need? So I would happily like to tell you that in the starting we don't need any, means this is a very low investment process. We don't need any money and we are not going to spend any money in the starting. And staff, we don't need staff in the starting, because in the starting both of us are enough to make a website. And if demand will increase in the market, we will hire staff as well. So I hope you got some information from our ideas, and thank you very much for your valuable time and patience. Thank you. Have a nice day. I am from BCA department, and our services is like about food. जिस कंपनी का नाम मॉम फूड है, और इसमें हम होम डिलीवरी, और आप आगे भी वहाँ पे कर सकते हैं. हमारा जो सर्विसेज है, we provide tiffin services for lunch and dinner. We provide offline and online delivery services. We provide fast delivery services and free delivery within 3 kilometers. We provide healthy and fresh food, not junk like junk food. We provide the services for employee and students. The difference between our food and others, we are promoting Indian food, and others they are promoting non-Indian food like Chinese, continental, etc. We are independent because we are preparing by own food. We are not हम लोग कहीं और से खाना लेकर नहीं डिलीवरी करेंगे, तो हम अपना बना के अपना ही डिलीवरी करेंगे. We take offline order as well. हमारे employment services होगा. We provide work to women who are willing to work but are unable to get a job. We are providing part-time job to job seekers, student, employee person. हमारे जो main ऑडियंस या क्लाइंट्स होंगे वो वर्कर्स, एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट होंगे. थैंक यू. Congratulations for your business idea to be selected at number 3, personalized fashion recommendation app. Very well done, beta. And to award these people, I would like to welcome Dean PCA Dr. Abhinand sir, HOD BCom Department Dr. Garima Srivastav, Mr. Sushil Shukla sir, Mr. Anshul Kumar, Ms. Preeti Srivastav ma'am to be on stage and appreciate the efforts of the winning teams. Very much appreciated, and you yourself is a big inspiration. It's truly said, the end of all good gathering is the beginning of better day in the future. So, I am truly humbled by the presence of each one of you. First of all, I would like to thank our director, sir, for supporting us and
always motivate us to strive for excellence. Then I would like to extend my heartfelt gratitude to our Dean Sir, Dr. Abhinand Sir, who was always there since beginning and made this event possible. And now I would like to thank our lovely student who made this event possible for their hard work, for their presentation and for their participation. Lastly but not least, I would like to thank Ms. Ramita Bansal, Amar Sir for their tireless work. Thank you so much everyone. That's all.